सनसेट टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। जी हाँ, स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रिकॉर्ड 9वीं बार उन्होंने आम बजट पेश किया है। 3 विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी सहयोगी टीना झा भी हैं। Absolutely. Good afternoon, viewers, and welcome to all our guests. It's been a remarkable budget, especially because of the thrust that the finance minister put on the budget. She said it's not a continuity, but it's an effort to sustain India's growth momentum and perhaps put the country's economy on a higher growth trajectory. She said the focus is on boosting productivity, on an inclusive growth, which will take us closer to our vision of becoming a Viksit Bharat by 2047. जी हाँ, 3 विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव झा हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पर्सोल इंडिया के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार सिंह हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर यशोवर्धन पाठक हैं, कमिश्नर जीएसटी और कस्टम बिहार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक वर्चुअल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपका भी स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा संजीव जी, क्या इस पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक एफटीए हुए हैं और हाल ही में यूरोपीय यूनियन के साथ भी एफटीए हो गया है, उसकी छाया कहीं नज़र आ रही है कि निर्माण पर भी जोर है और निर्यात पर भी जोर है? जी, आई थिंक मैं कहूँगा कि जो 3 मेजर पिलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बजट के थ्रू देखना चाह रही है, पहला कि इंक्रीज कैपेसिटी सो दैट दे कैन काउंटर इम्पोर्ट challenges. The second part is the indispensability, means we make ourselves more dependent. People are more dependent on us. The world is more dependent on us. And I think the third is the strategic tie-ups. And within that strategic tie-up is FTA is one of the biggest achievement because it somehow also gives you edge on both imports and exports. So yes, I think it's a if this event would have happened after budget, it would have been a big highlight, but it happened before. But still, it's a very, very large, step, I think, and it's going to kind of give us a lot of risk-free, both import and export, and give us a lot of balance of payment and, deficit will cover. Yeah. Absolutely. Thrust to increasing capex and reduction in fiscal deficit. That, in terms of the numbers, has been the big highlight. From where we started in 2014 to what the Modi government inherited to 2026-27, when we are talking about, it's been a continuity. So this budget, as experts have been pointing out since morning, cannot be seen in isolation. It's just one step closer to taking us closer to our roadmap to Viksit Bharat. Professor, your first thoughts on how do you look at this budget? It's a reform budget, it's a growth budget, or do you see it as a balance of all these factors which also incorporates sustainability? Yeah, it's a very good question, I would say. So if I would have to sum up in single line, it's all budget about, then I'll call it a Viksit Bharat budget. So Pradhan Mantri, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, point of the reform rally, which he has mentioned earlier also. I think this budget has given a significant movement for that, the same rally. If you look at all the sectors, look at the fiscal consolidation, fantastic. 4% the target, 4.5% the target which the FM made, it has been made, and fiscal consolidation has been there. Look at other areas also, health, Ayurveda, health sector, a major in a major improvement has been there in that investment. Now, if you look at this thing, these are not merely the short-term goals. These are the long-term goals which will make India very stronger and which is very important for the Viksit Bharat 2047 goal. Having said that, the capex, of course, 12 lakh crore, it's a big number. We'll see a big boost in the data centers also, which I mentioned in the budget. Plus, if I have to mention it in a single line, this budget not only talks about the macroeconomics picture, making it a healthier, but also at a micro level. So the Kartabya path, which has been mentioned, 3 Kartabya, I think the government has taken a very pinpointedly approach on that, and definitely is going to show the impact at the longer level to the Indian economy. यशोवर्धन जी, ये भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। मेडिकल से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ ये एक माना जा रहा था कि जिस तरीके से बेरोज़गारी थोड़ा सा कम हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विस्तार लेता जा रहा है, उस पर और ज़्यादा जो है व्यय किया जाएगा, उसका आवंटन बढ़ाया जाएगा। उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। आपका क्या कहना है? See, I would say it's a very, very futuristic or
एक विजनरी बजट है, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है जिसमें हमारे ग्रोथ को भी और हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन का भी, दोनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। हम we are growing at 7.4% this year, and next year the targets are around 7%, 7.2%. So in a world which is geopolitically very unstable, things are every day different things are happening globally. This kind of growth momentum as a fastest growing economy, it's absolutely a very futuristic budget. जहाँ तक मेडिकल टूरिज़म का सवाल है, मेडिकल टूरिज़म का इंडिया हैज़ एन अमेजिंग पोटेंशियल। इंडिया के पास जो डॉक्टर्स की टीम है, जो हम लोग जितनी नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो एवरी ईयर हमारे मेडिकल स्कूल से निकलते हैं, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड बियॉन्ड दैट जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है इंडिया में, दैट ट्रीटमेंट कॉस्ट इज़ डेफिनेटली चीपर व्हेन यू कंपेयर दैट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो डेफिनेटली एक उस एरिया में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को इस बजट में समझा गया है। हमारे केपिक्स एक्सपेंडिचर को 10% से ऊपर बढ़ाया गया है। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स लाइक रेलवे में हाई स्पीड कॉरिडोर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन द EV बैटरीज एंड अदर फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को भी फोकस किया गया है। और जो एक लॉन्ग टर्म हमारा टारगेट है कि 2047 तक इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको, उस टारगेट्स को हम मीट आउट कर रहे हैं। एंड वी हैव टू अप्रिशिएट दैट ये जो हम फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट आउट कर रहे हैं, ये डिस्पाइट जो हम लोगों ने टैक्स में इतने बड़े कट्स लास्ट ईयर किए उसके बावजूद है। There were big reforms in income tax में last year ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने मेजर स्लैब्स को इंक्रीज़ किया। GST में हमारे नवरात्र के आसपास मेजर चेंजेस हुए। इन सब के बावजूद जो कंजम्पशन बढ़ा है और हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम है, आगे भी ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही सस्टेन करेगी। एंड as all my panelists, we are on the consensus that it's a budget where the growth is maintained futuristic with a target that India will achieve a Viksit Bharat goal by 2047. In fact, I recall, Pratibim, just ahead of the start of the budget session, the Prime Minister had said that India is on board the Reform Express. That term found mention even in the Finance Minister's speech. In many ways, this budget has been historic for the fact that this was Finance Minister Nirmala Sitharaman's 9th consecutive budget. She surpassed many finance ministers in doing so. But most importantly, all of this has happened under one leadership. That's also something that makes her budget presentation stand out. But most importantly, given the fact that there are global uncertainties, so the global geoeconomic landscape is currently in turmoil, where India is an oasis of macroeconomic stability. You would recall the chief economic advisor having used this term specifically in terms of India's growth. So Mr. Chahal, I'll bring back the discussion to that Reform Express in line with what the Prime Minister said. साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में IICT मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया DFC भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ।
अभी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे संजीव जी, इसमें हम देख रहे हैं कि रेलवे पर कुछ ज़्यादा फोकस रहा है बजट, और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना अपने आप में क्या एक बड़ा बदलाव? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मतलब माइलस्टोन है इंडिया के लिए. अगर आप वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी को देखें, दे हैव ग्रोन ओनली वंस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज रेडी. सो आई थिंक अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है, आप देखेंगे, चाहे रेलवे कॉरिडोर्स को देखें, चाहे आप नेशनल हाईवेज को देखें, चाहे आप नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को देखें, ओवर द लास्ट 4-5 years देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड नाउ it is visible, the impact of these infrastructure facilities visible in the output, the productivity, and also the business generation, also even the ports development. So I think they are basically developing all possible modes of transport where it can boost the trade and manufacturing, and that's our focus basically, to make the industrial, that new revolution, because that's where we have not been really doing so great. On the services side, yes, we have been doing great. I think now it has started showing up. So that's why the capex also, you can see one of the good things in the budget. I see that the revenue expenditure is lesser than the capital expenditure, and this is considered to be in economic terms as a very value added expenditure, which means the expenditure is of good nature. So I think all this clearly says that we are infrastructure focused, and all the new corridors which are announced today, some in south and some in north, I think they are definitely going to add to the overall infrastructure boost, and eventually the industry growth and the output growth, and also the employment at the same time. Just to give a quick recap to our viewers, the proposed development of 7 high-speed rail corridors, which focuses on boosting connectivity and infrastructure. The key routes of these corridors include Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Bengaluru to Chennai. So different parts of the country, but connecting majorly the trade points, and most importantly, these are areas which will see enhanced connectivity. Then there is plan to operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. So this will be done by 2031 is what the government aims at. Training institutes will then again be set up as regional institutes of excellence in waterway space. There will be a ship repair ecosystem catering to inland waterways, which will be set in Varanasi and Patna. So alongside these connectivity projects, Professor, there is a proposal to set infrastructure risk guarantee fund. The finance minister said that she's proposing setting up of dedicated real estate investment trust as well to recycle the assets of central public sector enterprises. Break down this for our viewers to understand the significance and the importance of some of these announcements which cater to the infrastructure bit, which is different from connectivity and different from the infrastructure projects, but which will be a milestone in enabling investments, in enabling businesses in these sectors? Right. I think that's a very good question. I would see that, if you look at the infrastructure point, in economics, macroeconomics, generally there we have something called the multiplier effect. For every rupee which the government makes, it has an implication on the development of the other projects also. So this government has taken a very good stand on this thing by taking into incorporation some of the major developments for the risk guarantee scheme for the infrastructure projects. Having said that, the Yuva Shakti, the point which has been Yuva Shakti budget, the term which has been used for it is for the same only, because if you look at the infrastructure, which is the backbone for any economy, logistics, if you take into consideration, a lot has been investment made in this direction, because all the FTA, free trade agreement, if you talk about, which India has done with the foreign countries like European Union plus 8 other countries which we have made, 8 FTA which we have signed, this will need the backup. And for that backup team, for any company to invest, they need to have the risk-free environment for that. Basically, what we are trying to do is to look at the ecosystem, to make the ecosystem better, so the investment can come in and that can augment in the export-oriented economy of the country. Second point which I would like to mention, that the capex which is generally done in the case of the road or the ports and others, like one of the data I would like to center that the airports in India used to be 74, now we have currently 164 airport, 2024 data says that. So to have the risk-free environment, to have the mental free without any hazard for the investment, we needed to have, and that was a need of the hour, and I think the Honorable Finance Minister has taken a very good stand on that.
डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्चुअली। डॉक्टर मनोज, काफ़ी बात हो चुकी है, थोड़ा सा लेट आप कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसको विस्तार देने का प्रयास किया गया है, लेकिन अगर बात करें, मैंने शुरुआत वहाँ से की थी कि जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन के साथ FTA हुआ है, ब्रिटेन के साथ FTA हुआ है, जोर निर्माण के साथ साथ निर्यात पर है और उसका असर नजर आता है। MSME को चैंपियन के तौर पर आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा गया इस बजट के दौरान, और 10,000 करोड़ रुपए MSME ग्रोथ फंड जो है तय किया गया, कितना बड़ा बदलाव? बहुत बड़ा बदलाव है और प्रधानमंत्री जी ने पहले इस चीज को रेखांकित कर दिया था। इकोनॉमिक सर्वे के समय हम लोगों ने चर्चा भी किया था इस चीज को कि MSME हमारे ग्रोथ का एक बड़ा आधार आगे बनता चला जाएगा। और जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA हुआ है, उसका मुख्य आधार हमारा MSME ही बनता है। लेकिन MSME को भी अब मॉडर्नाइजेशन के साथ देखा जा रहा है। जो 10,000 रुपए का ग्रोथ फंड तैयार किया गया है पहली बार, तो मुझे लगता है कि इसको इस रूप में देखना चाहिए कि इसके साथ कनेक्टिविटी भी जोड़ा जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन भी जोड़ा जा रहा है, और जो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है उसको भी कहीं ना कहीं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, जिसको एक मित्र, कारपोरेट मित्र के रूप में इसको रखा जा रहा है कि कैसे हम इनके जो कई बार नॉलेज गैप रह जाता है, अवेयरनेस गैप रह जाता है, उसको रखा जाता है। और इसके साथ किसको पोषित कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट इस रूप में हो जाता है कि हम Tier 2, Tier 3 सिटीज को अब हम वहां पर शामिल कर रहे हैं। बड़ा स्पष्ट कारण है उसका स्पष्ट कारण इस रूप में आता है क्योंकि आज के दिन अगर हम देखते हैं तो भारत का ग्रोथ इंजन Tier 2, Tier 3 सिटीज बन रही हैं, यानी कि वो एक नया तरह का कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं टू द ग्रोथ इंजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो खाली हम MSME तक अपने को न रखें, MSME की जो परिधि है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। पहला, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से Tier 2, Tier 3 सिटीज, इसका एडवांटेज क्या होगा? यहां से जो आउट माइग्रेशन होता था या आसपास की विसिनिटी से जो आउट माइग्रेशन होता था वो रुकेगा, लोकल टैलेंट वहां पर रुकेगा, प्लस उनको जो टैलेंट चाहिए होगा, जो अवेयरनेस चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगा, उसके लिए जो 5 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जा रही है जो इंडस्ट्रियल हब के इर्द गिर्द होंगे। एक और एडवांटेज यहां पर हमको MSME के रूप में दिखाई पड़ता है। 200 जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थी वो कहीं ना कहीं यूं कह लीजिए कमजोर पड़ गई थी या गायब हो गए थे। उन क्लस्टर्स के रिवाइवल से फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशनल जो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करता था वो और पोषित होगा। यानी कि MSME को हम देखते हैं तो कई रूपों में हमको इस बजट में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी कुछ क्लस्टर्स इधर हैं, कुछ क्लस्टर उधर है बजट में, लेकिन MSME हर तरफ दिखाई पड़ता है। और दूसरा, अगर आप देखते हैं कि जिस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, उसमें MSME जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है रिसर्चर्स के लिए, हम जैसे रिसर्चर लिए बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि हर जगह हमें MSME तलाशना होगा, क्योंकि बिना MSME के भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो आगे उस रूप में नहीं होगा। यूं समझिए, बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे जो गैप्स है वो कौन फिल करेगा? आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत
जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को
और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया बजट के बाद, और बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने सार बताया है बजट का। उसमें जिन चीज़ों पर फोकस किया गया, संजीव जी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अपने आखिरी संबोधन में, जो अंतिम संबोधन की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा युवा शक्ति बजट है। अब युवा शक्ति को लेकर उन्होंने बताया कि स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी पर हमारा फोकस है। एक तरह से अगर हम देखें, समझें, तो जो एम्प्लॉयमेंट लिंक ग्रोथ की बात की जा रही है, स्किल बेस्ड हायरिंग पर जोर दिया जा रहा है, कैसे हम बजट के जरिए इसको समझें कि जो बजट है वो जॉब क्रिएशन को स्लोगन से निकालकर एग्जीक्यूशन की दिशा में लेकर जा रहा है? आई थिंक बहुत दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। See, one of the most important struggle as a country we have is we have a huge youth population, which is around 26 to 30 crore, which counts to about 20% of our population. And I think the whole idea is that any country can grow and sustain the GDP growth we are looking at only if we are able to provide enough employment to these youth. So I think now the budget theme is that how do we kind of create growth. So the growth is being addressed by many reforms, etc. What is important is to see that how growth will eventually convert into the employment. I think that's where the success will happen and sustainability will come. So I think in order to have more employment, I think all the reforms which have been announced even previously and even in this budget, for example, you look at the entire data center, which has been made tax free now for like until next 20 years. So it will attract a lot of investment in India. There is a GCC boom, where a lot of global shared services centers are being, increasing now. They were almost 1,700. They may go up to 2,500, adding to almost 6 lakh jobs. Then if you look at one of the themes in this budget is the tier 2, tier 3 cities. And I think we heard the professor on our panel that what will happen is that today we are going to utilize the talent in these tier 2, tier 3. Already it has been identified by many companies. But now I think it has been made very, very clear that instead of those people coming to the tier 1 cities, we will try and take employment to tier 2, tier 3, and this will hold them there and it will give them a lot of employment. And also all other reforms, for example, the health sector, the sports sector, the MSME. Now MSME is going to be one of the major employment creator because MSME is almost 35 to 40% of our overall GDP and is the backbone for any economy for that matter. So I think all this put together, clearly there is a focus that we have to convert growth into employment, and for that we need to bring more business, more reforms, more simplicity to do business or ease of doing business, and also the skill development. We have to skill our people so that they can be absorbed in those reforms, in those growth, and eventually they both marry well with each other and we eventually get the outcome. So definitely employment and this Yuva Shakti is one of the most important theme and success factor for us in years to come. राकेश जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मदर ऑफ ऑल डील, FTA जो हुआ है यूरोपीय यूनियन के साथ, क्या उसको देखते हुए भी डिज़ाइन किया गया है इस बार का बजट, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने भी उस तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि इस डील का लाभ भारत के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, उसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। जी सही कहा आपने। जो मदर ऑफ ऑल डील्स, जो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें देखिए, इसमें कई बातें देखनी पड़ेगी। जो हमारा अभी जो अमेरिका के साथ अगर हम उसको देखें, जो टैरिफ वॉर हमारा चल रहा, उससे भी कई तरीके से हमारा जो ये डील है उससे हमें निकलने में काफ़ी मदद करेगी। हम आर्थिक दृष्टि से अगर इसको देखें तो हमारा जो निर्यात क्षेत्र है, एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको भी बहुत एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो इससे थोड़ा प्रभावित हुआ था, तो इससे एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। और जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि युवा शक्ति बजट है। ऑफ कोर्स ये हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। भारत में एक युवाओं की जो प्रतिभा है ये हमें 2040 तक अवेलेबल है और भारत इसको पूरे अच्छी तरीके से नियोजित करके एक सही मार्गदर्शन में जाना चाहता है। उसके लिए ये जो डील है, मदर ऑफ ऑल डील है, ये बहुत ही मुझे लगता है क्रियान्वित रहेगा और बहुत ही लाभदायक रहेगा। दूसरी बात मैं जो जोड़ना चाहूँगा, इस डील में जो लेदर सेक्टर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, वो तो है ही। उसके अलावा जो ऑरेंज इकॉनमी की हमने बात की है, डेटा सेंटर्स की बात की है, ऑरेंज इकॉनमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आज युवाओं का जो इंटरेस्ट है, जो उनका जो झुकाव है,
हम देखते हैं विजुअल इफेक्ट्स की तरफ, क्रिएटिव की तरफ इफेक्ट है, और इसमें उनको काफ़ी बूम देगा, एक उड़ान देगा, जो प्रधानमंत्री जी ने इसके वर्ड यूज़ किए, उनको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, क्योंकि उसी ऊर्जा के साथ उसमें भी काम करेंगे। और जो हमने टैक्स हॉलीडे दिया है 2047 तक, जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो ऑरेंज इकॉनमी जो हमारा ऑरेंज इकॉनमी है, ये जो लेदर एक्सपोर्ट्स जो होंगी और जो डेटा सेंटर्स का जो बूम आएगा, इससे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसे हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे, और भारत एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ निश्चित ही 2047 से इस कदम से बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। और यशोवर्धन जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, शुरुआती की उन्होंने कि फिस्कल डेफिसिट कम करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये दोनों फोकस रहा है बजट में भी और सरकार की प्राथमिकताओं में भी। कैसे समझे जो पूरे टैक्स को लेकर जितने रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जिन भी कदमों का जिक्र किया जा रहा है, जो बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में एक तरह से मैं कहूँ क्वाइटली लेकिन इफेक्टिवली रोल कैसे निभाता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक मैंने सुना उनके संबोधन में, उन्होंने एक रिफॉर्म एक्सप्रेस करके कहा कि अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस के ऊपर देश रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह चल रहा है, और 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उस लक्ष्य को हमें पूरा करना है। डेफिनेटली उस लक्ष्य में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस और फिस्कल कंसोलिडेशन, हमारी जो हमारे मेन इकोनॉमिक के पैरामीटर्स हैं, उनको हमें पूरा करना है। और ये जो बजट है, ये बजट उसी ध्येय को लेके उस दिशा में आगे चल रहा है। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं इस बजट में जो हमें उस डायरेक्शन में ले जा रहा है। जैसे आप क्लाउड सेंटर्स को देखें, जो फॉरेन की AI से रिलेटेड जो सबसे विश्व की बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 5, उनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो कैसे इंडिया में आएँ, और उन डेटा सेंटर्स को एक टैक्स हॉलिडे दिया गया है। टॉप 5 उसमें अमेज़ॉन है, उसमें गूगल है, उसमें बड़ी कंपनीज़ हैं। मेडिकल टूरिज़्म एक अपने आप में जो 5 जगह स्टेट के साथ और प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मेडिकल टूरिज़्म को 5 हब्स बनाने की बात कही गई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विजनरी स्टेप है। इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट वर्ल्ड ओवर बहुत चीप है, और इसको हमें कैसे ग्लोबल मार्केट में इसको हमें सेल करना है, और इसको हमें इससे न सिर्फ हमारी फॉरेन FDI FPI वो सब इंक्रीज़ होगी, बल्कि इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत बड़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के हब्स, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स, जो फास्ट रेल नेटवर्क कॉरिडोर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाना चाह रहे हैं, और उस दिशा में रोज़ आगे बढ़ रहे हैं, उसी से वही एक बदलते भारत की, एक बढ़ते भारत की बुनियाद है। और उस दिशा में बहुत से डायरेक्शन मिलेंगे आपको। जैसे मदर ऑफ ऑल डील्स की अभी हम बात कर रहे थे, हमारी जो चैलेंज हमें US इकॉनमी से आ रहा है, US की तरफ से, तो हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं, हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हैं, उसको अब यूरोप में एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी जो EU है एंड 4th लार्जेस्ट इकॉनमी जो हम हैं, दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसे सही शब्दों में कहा गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। तो इन सब का इम्पैक्ट भारत के ग्रोथ पे, भारत के ग्रोथ मोमेंटम पे, भारत के फिस्कल कंसोलिडेशन पे, हमारी जो जिस दिशा में एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, हर दिन उसमें चीज़ें आ रही हैं। और एक विजनरी बजट, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है, ये एक बहुत ही विजनरी बजट है, जिसमें आपको बहुत सी मॉडर्न चीज़ों का समावेश किया गया है। आप जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि उसमें EV हो गया, उसमें सेमीकंडक्टर्स हो गई, उसमें और भी जो सोलर से रिलेटेड इशू, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको टैक्स हॉलीडेज़ दी गई हैं। और ट्रेड को भी जिस तरीके से, बिकॉज कोई भी कंट्री अगर वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर की तरफ बढ़ता है, तो उसमें ट्रेड का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करना है, और एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट करना है SEZ और बाकी माध्यम से, इन सब का इस बजट में प्रावधान है। अलग अलग जगह विस्तार से बताने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, बट अदरवाइज इट इज़ अ ऑल एनकम्पसिंग बजट, अ बजट विच विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लीप, as I say कि next by 2030 or let's say 2035
जो हमारी ग्रोथ मोमेंटम है उस ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहे, और साथ में भी जो हमारी फिस्कल कंसोलिडेशन है, जो हमारा केपेक्स एक्सपेंडिचर है, जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 2030 तक डेट टू जीडीपी रेशियो को हम 50% तक ले आएंगे, और ऑलरेडी जो हम उसको हम जिस स्पीड से कम करना है, इस साल वो 54 या 53 के आसपास रहेगा, एंड बाय 2030 वी वुड बी अचीविंग दैट टारगेट. So all in all, in this, it's a very visionary budget and a budget in the right direction and a very balanced budget. मनोज जी, जब आपसे बात कर रहे थे एमएसएमई पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, बीच में प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, और जिस बात को यहाँ पर हम उठा रहे हैं, जिन बिंदुओं को, उस और प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा विस्तार से इशारा किया है. तो एमएसएमई की बात करें, उसको थोड़ा सा नई शक्ति देने का प्रयास किया गया है, उद्योग जगत को जो है और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है. यहाँ पर एमएसएमई से सरकारी खरीदी बढ़ाई जाएगी, इस पर जो है जोर दिया गया है. वस्त्र उद्योग में रिफॉर्म लाए जाएंगे और मेगा टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण भी होगा, और खेलों के सामान बनाने पर भी जो है भारत आत्मनिर्भर बन पाए, उस और भी जो है हम लोग काम करेंगे. ये एक दिशा रही इस पूरे बजट की. आप इस दिशा को कैसे देखते हैं? अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं आप. मैं कह रहा था कि आप इस बजट में जहां देखेंगे आप एमएसएमई की झलक पाएंगे. उदाहरण के तौर पर एआई का मैक्सिमम एप्लीकेशन, ठीक है, बड़े कारपोरेट से तो होना ही होना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर और एमएसएमई उसमें शामिल होता है. दूसरा, अगर देखते हैं कि जिन इंडस्ट्रीज को इसमें हाईलाइट किया गया है, मैं नाम ले रहा हूं कि बायोफार्मा शक्ति में भी आप पाएंगे कि एमएसएमई सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है. टेक्सटाइल में भी अगर आप जाएंगे तो टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है कि बिना एमएसएमई के ये सेक्टर अपने को पूरी तरह से स्थापित कर नहीं पाएगा. और चूंकि अब इस समय हमारे पास एक मजबूत आधार है, मजबूत सपोर्ट है, मजबूत इकोसिस्टम है, इसलिए एमएसएमई का जो उद्गम फिर से हो रहा है. और एक बात जो शुरू में उसमें छूट गई थी, वो ये था कि 200 स्थानों पर जहां पर एमएसएमई हुआ करते थे, जिसको इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहा गया, वो एमएसएमई के क्लस्टर थे, वो खत्म हुए. मान लीजिए कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कानपुर बात करते हैं, अगर हम इसी प्रकार से वाराणसी की बात करते हैं, कई और हमारे इस प्रकार के क्षेत्र हैं, अब उनको रिवाइव करना, नए कलेवर में रिवाइव करना. तो जो स्थापित है, वो जो पुराने थे उनको रिवाइव करना. अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो मामला आता है और स्पोर्ट्स गुड्स आप खुद जिक्र कर रहे हैं, और ये हमारे यहाँ का एक मजबूत, आपको बताता हूं कि एक्सपोर्ट आइटम भी है हमारे ये स्पोर्ट्स गुड्स का. और जो हमारे यहाँ खेलों के है, पिछले बजट में इसकी चर्चा काफी हुई थी, और अब उसको और कलेवर में जाना है, वो है टॉयज का. तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देता है. दूसरा, अगर हम देखते हैं, ये तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, एमएसएमई का हम देखते हैं तो उसमें ट्रेडिंग भी शामिल है, या सर्विस सेक्टर भी उसमें शामिल है. जिस प्रकार का हमारे यहाँ आज के दिन, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हम चर्चा करते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, वहां टूरिज्म का हमें प्रमोट करना है. हु विल प्रमोट टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट? इट इज नॉट द कारपोरेट. टूरिज्म इन इंडिया इज बीइंग लार्जली प्रमोटेड बाय एमएसएमई सेक्टर. आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो आज टूरिज्म का हब बन चुका है, कल्चरल टूरिज्म कह लीजिए, रिलीजियस टूरिज्म कह लीजिए, उसका हब बन चुका है. वहां पर कौन सबसे ज्यादा है? एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा आ रहा है. फिर इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कई और क्षेत्रों में, मान लीजिए द्रोण दीदी की जैसे पहले हुई चर्चा, या यहाँ पर एआई का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में होना है, हु विल प्रोवाइड दिस सपोर्ट? इट इज द एमएसएमई सेक्टर. कहने को एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा, लेकिन हु इज गोइंग टू बी द फैसिलिटेटर? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द एमएसएमई सेक्टर. तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि तमामों और एक्टिविटीज है केंद्र सरकार लॉन्च कर रही है, और स्टेट के माध्यम से भी लॉन्च कर रही है. तो हु आर द सपोर्टर ऑफ दैट, हु कैन ट्रांसलेट दैट टाइप ऑफ थिंग इनटू एक्शन? ये सीधी सी बात है, एमएसएमई सेक्टर. इसलिए एमएसएमई सेक्टर कोई आज के दिन चैरिटी नहीं रहा. दे आर द क्रिटिकल कंपोनेंट जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित भारत में ले जाने का काम करेंगे. नंबर एक, आप देखेंगे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम आगे बढ़े,
उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि एमएसएमई सेक्टर को हमने प्रमोट किया। नतीजा क्या हुआ, आज जो हम लोगों के पास डेटा छन छन के आ रहा है, ऑफिशियल डेटा तो अभी नहीं आया है, वो सेंसस से आएगा, कि आप देखें कोविड के बाद से उत्तर प्रदेश से अन्य जगह का जो आउट माइग्रेशन होता है उसमें कुछ कमी आना प्रारंभ हुआ है। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था और आज भी है, वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल, तो उसमें एमएसएमई भूमिका निभा रहा है, नंबर एक। दूसरा, तमामों और सेक्टर्स जो इमर्ज कर रहे हैं, बहुत सेक्टर्स खोले हैं आज। मान लीजिए क्लाउड के लिए बात होती है, तो क्लाउड के लिए बात होने में ठीक है, कारपोरेट्स आगे आएंगे सबसे पहले, लेकिन अल्टीमेटली कौन ट्रांसलेट करेगा उसको एक्शन में? दे आर गोइंग टू द एमएसएमईज। तो हमें एमएसएमई सेक्टर को बहुत करीने से समझने की आवश्यकता है कि वो कहां कहां फिट हो रहे हैं। यूं समझिए, भारत का जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमें मजबूत करना है, तेजी से बढ़ाना में कारपोरेट्स भी चाहिए, बड़े उद्योग भी चाहिए, लेकिन बिना एमएसएमई के कनेक्ट दोनों के बीच, पब्लिक के बीच में, स्मॉल होल्डर्स, लैंड होल्डर्स, स्मॉल ट्रेडर्स और उनके बीच में बिना एमएसएमई के कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरा बार बार यही आग्रह रहेगा कि एमएसएमई को हम हर बार नए रूप में देखेंगे तो हमें नए भगवान इसमें दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। और संजीव जी, थोड़ा सा अगर मैं हायरिंग और ग्रोथ रियलिटी के हिसाब से बजट को समझना चाहूँ, तो बजट स्पीच में जीडीपी ग्रोथ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बताया गया है कि जॉब का नेचुरल ड्राइवर यही है। अब ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो एचआर और रिक्रूटमेंट जो फर्म्स हैं वो क्या देख रही हैं? क्या कंपनीज अब एक तरह से मैं कहूँ कि एक्सपेंशन और हायरिंग को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं, इसको कहा जा सकता है? आई थिंक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो फोकस है, और एवरीथिंग इज़ डन टू इंश्योर दैट आवर यूथ गेट एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, इट्स अबाउट 6 to 8% largely, but if you look at the unemployment rate of the youth, it's maybe in double digits, maybe 11-12%. So जो सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। पहला, there has to be an opportunity, which means there has to be an industry who can employ them, and the secondly, you need to have that skill to be part of that job in that industry, right? तो आई थिंक फोकस दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है इस वक्त, कि पहले ग्रोथ को क्रिएट किया जाए। जो ग्रोथ हमने क्रिएट की इस बार, दैट वन ऑफ द ड्राइवर इज़ ऑफ कोर्स द कंजम्पशन केपेक्स, एंड जो एमएसएमई में अब बूस्ट है, जो अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम कोशिश कर रहे हैं करने की, जो एफटीए हमने किया है, इस सबसे क्या होगा, इस सबसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली जो हायरिंग ट्रेंड है वो बढ़ेगा। आज इंडिया विल बिकम ए कॉम्पिटिटिव प्लेस फॉर पीपल टू बी प्लेस बेस्ड आउट ऑफ हियर। जैसे कि हमने अपनी लीडरशिप पोजीशन सॉफ्टवेयर में ली है, ऐसे ही हम धीरे धीरे वो लीडरशिप पोजीशन हर स्पेस में लेंगे। आज सिर्फ सर्विसेज में ही नहीं उसका टारगेट है, इवन हम मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहते हैं, हम प्लेन्स भी बनाना चाहते हैं, हम शिप्स भी बनाना चाहते हैं, हम डिफेंस के सारी चीज़ों को बनाना चाहते हैं, हम हर चीज़ करना चाहते हैं, और उसके लिए ही ज़रा फोकस है कि यही वो सस्टेनेबल ग्रोथ है जो हमें एम्प्लॉयमेंट देगी। तो आई थिंक आने वाले टाइम में ये जो बजट है, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, मेरे हिसाब से इट विल जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर एट द सेम टाइम दैट वी प्रोवाइड दो स्किल्स। सो आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है साथ के साथ जाना। अदरवाइज यू नो we may, like Professor said, that it's a demographic dividend for us. We have one of the largest country which has a youth bulge, we call it. So I think इसको अगर हमें यूटिलाइज करना है तो आई थिंक ये दोनों को हमें मैरी कराना पड़ेगा, और वही इस बजट का बेसिकली टारगेट है। प्रोफेसर राकेश, यहाँ पर आधारभूत ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है देश का, उसमें निवेश भी किया जा रहा है, और इस बार भी उस बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसको जोड़ते हुए शिक्षा में इस हॉस्टल, जिले देश की सभी जिलों में एक एक हॉस्टल बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों सरकारों के साथ मिलकर राज्य सरकारों की एक चैलेंज रूप में राज्य सरकारों को उसमें से प्रतियोगिता करना पड़ेगा, शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, मैंने इसमें से अनेकों यूनिवर्सिटी आएंगे। 5 यूनिवर्सिटी टाउन जो उस राज्य की इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक क्लस्टर के पास होगी, इसमें रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ये सारे की एक इकोसिस्टम बनेगी। ये
दुनिया की अर्थनीति में प्रमाणित तथ्य है। अर्थनीति को बड़ा करना है तो उसको एक नॉलेज पॉइंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। भारत की अर्थनीति नॉलेज बेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। ये 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इसकी सहयोगिता राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैसे ही हमारी 15,000 स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ABGC की जो एक नई राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हुई है उसकी अगुवाई में इसे जोड़ते हुए 15,000 स्कूल्स में ABGC की पढ़ाई की जाएगी, कोर्स खुली जाएगी। उसकी हायर स्टैंडर्ड्स की कोर्सेज के लिए 500 कॉलेज में ABGC की कोर्सेज चलाया जाएगा। ये ऑरेंज इकोनॉमी को देश में, हमारे देश में गुणवत्ता की, सृजनता की, कला की कोई कमी नहीं है, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए ये 15,000 स्कूल्स में कोर्सेस और 500 स्कूल में, 500 कॉलेजेस में इस प्रकार के कोर्स, ये बहुत कारगर साबित होगी। पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID देश में अनेक स्थान पर काम कर रहा है। पूर्वी भारत में NID नहीं था। केंद्रीय बजट में इस बार पूर्वी भारत में NID स्थापित करने के लिए घोषणा किया गया है। ऐसे 4 जगह पे एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए 4 जगह पे टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड और नया सेटअप किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बार बजट में किया गया है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उनको जाने की पहले 5% की टैक्स देना पड़ता था। आपने जितना रेमिटेंस उनको देना पड़ता था, जिनका उनको फीस वगैरह उनके खर्चे के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था, उसमें 5% टैक्स लगती थी। इसको सरकार ने इस बार घटा के 2% किया। उसमें हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाके एडवांस रिसर्च करना, पोस्ट डॉक्टरल करना और जनरल एजुकेशन में जाना और सुलभ हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा इस बार बजट में किया गया है। एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, E2E स्टैंडर्ड कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें विकसित भारत की लक्ष्य को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवेन AI एम्पावर स्कूल एजुकेशन SCRT को इन्वॉल्व करते हुए एकदम एक नई एजुकेशन इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम देश में कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए E2E स्टैंडर्ड कमिटी, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी। इस बार NCERT हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इस बार बजट एलोकेशन में NCERT की जो परंपरागत बजट होती थी उसमें से 14% की ग्रोथ हुई है। ये NCERT हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हमारा NCERT है। इसको गति देने के लिए NCERT के बजट को भी बढ़ाया गया है। अन्य 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आज यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। देश में जिस प्रकार की बच्चों के ऊपर डिस्ट्रेस होने की प्रायोरिटीज दिया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंटल हेल्थ के बारे में खूब चर्चा की गई थी। आज बजट में उस विषय को आगे ले जाने के लिए दक्षिण में बेंगलुरु में निम्हांस एक बहुत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके काम कर रहा है। देश में दूसरी निम्हांस बनाने के लिए भी बजट में अनाउंस किया गया है। मैं मानता हूँ बच्चों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए उस प्रकार के एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे और 2 संस्था के बारे में उल्लेख किया गया। नाइपर देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो अभी के 7 नाइपर है उसको अब अच्छा किया जाएगा। उसके अलावा 3 नाइपर और खोला जाएगा। इसमें देश में 10 नाइपर हो जाएंगे।
ये भी एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म पे पहले हमारे देश में IIHM संस्था दायित्व में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अनेक राज्यों में सरकार की ओर से काम कर रहा है, अच्छे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है। इसको थोड़ा अपस्केलिंग करते हुए सरकार ने इस बार बजट में निर्णय किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोली जाएगी, उसको अपग्रेड किया जाएगा, इसकी मानक और बढ़ेगी, उसकी कोलैबोरेशन भी बढ़ेगी। ये सब निर्णय भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय जिस तरह से सभी सेक्टर काम कर रहे हैं, सभी सेक्टरों में बजट में भी ध्यान दिया गया है, वहीं सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टरों में ईवी सेक्टर है। और हम बात करें तो सोलर की बात करें, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस पर लगातार काम कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्वोटेक के MD। सर, कैसे देखते हैं रमन भाटिया जी आप इस बजट को, और किस तरह से देखते हैं जो सोलर एनर्जी की हम बात करें, ईवी की हम बात करें, तो आने वाला भविष्य इसी सेक्टर का है। तो जो बजट एलोकेशन हुआ है उसको कैसे देखते हैं, और विकसित भारत का जो रोड मैप है 2047 का, उसको देखने के लिए आज जो ये बजट एलोकेशन है उसको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे आंकते हैं? बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है इस बार, क्योंकि वो भी समझ रही है कि एनर्जी में जो उन्होंने बहुत फोकस किया है पिछले टाइम में, अब उसका पूरा प्रेशर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो इस टाइम इंफ्रा पे बहुत जोर है, और इंफ्रा को स्टेबल करने के लिए एनर्जी स्टोरेज का बहुत बड़ी मांग है और उसकी जरूरत भी है। तो उसके लिए लिथियम बैटरीज के इम्पोर्ट पे काफ़ी सारा काम किया है गवर्नमेंट ने। कुछ ड्यूटीज़ में एग्जेम्पशन देने की कोशिश हो रही है। प्लस जो मुझे लगता है वो ये है कि एग्जीक्यूशन, ये जो बजट है वो मोर फॉर एग्जीक्यूशन है, नॉट मोर फॉर इंसेंटिव और सब्सिडी। तो अगर हम एग्जीक्यूशन पार्ट को देखें तो उस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। अगर हम एग्जीक्यूट ठीक से कर लें ग्राउंड लेवल पे, तो 2047 की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो हो सकता है वो 2047 हमारे ज़िंदगी में 2035 में आ जाए। इस दिशा में काम हो रहा है जी। जिस तरह से आज की दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वहीं अगर अब सोलर की बात करें, हम ईवी की बात करें, तो दोनों में बैटरीज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल आ जाता है। वहीं हाल ही में एक चर्चा भी रही है, बात करें सिल्वर की, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। और सिल्वर का रोल जो हाल ही में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि किस तरह से जो प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हुए हैं। उसको देखते हुए क्या चैलेंजेस आपने महसूस किए हैं कि आने वाले समय में होने चाहिए, और उसके लिए सरकार का स्टेक क्या है? जो सिल्वर है वो अपने आप में कोई डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं होता कि सिल्वर लगाया उससे गाड़ी बन गई या बैटरी बन गई। सिल्वर का यूज़ होता है कंपोनेंट्स में, राइट। तो कंपोनेंट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए, मेक इन इंडिया किया जाए, और जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो भी इंडिया में बनाए जाएं। इस पे काफ़ी जोर है। अगर वो ऐसा हो जाता है तो इंडिया बहुत जल्दी सेल्फ रिलायंट हो जाएगी और बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रो कर पाएंगे। जी, अगर हम बात करें, आपने बोला कि चिप की आपने बात करी यहाँ पे, तो उसको लेकर जिस तरह से प्रोत्साहन सरकार लगातार दे रही है, और आत्मनिर्भर होने की अगर हम बात करें तो कितना तेजी से आपको दिखाई दे रहा है कि आने वाले वर्षों में हम सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? मैंने आपको जो बोला, मैं उसी बात को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। एग्जीक्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। जो बेसिक प्लानिंग थी, जो बेसिक सब्सिडीज इंसेंटिव्स हो गए, अब अगर हमें फैक्ट्री लगाने के लिए कोई इंसेंटिव दे दिए गए हैं या कहा दिया गया कि आपको मिलेगा, तो अब पहले तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो वो जो हम प्लान कर रहे हैं कि वो 2 साल में होगा या 3 साल में होगा, हम उसको कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना हम AI को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें IT, AI इन सब का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो अगर हम एग्जीक्यूशन में ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को बहुत तेज़ी से रोल आउट करना शुरू कर दें और गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ये काम कर लेंगे। संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बात लगी, थैंक यू। तो ये थे, इन्होंने बताया सर्वोटेक के रमन भाटिया जी, सर्वोटेक के MD हैं, और उन्होंने बताया किस तरह से जो आने वाला वर्ष है वो सोलर एनर्जी और EV सेक्टर का रहने वाला है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।
आने वाला समय ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। जी हाँ, विकसित भारत के विजन के साथ पेश हुए बजट 2026 में एक चीज तो साफ है कि जो फोकस है वो रिफॉर्म, रफ्तार और राहत पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बजट आम टैक्स पेयर की जेब तक राहत पहुंचा पाएगा? इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन टीसीएस में कटौती, मैट में राहत, नया इनकम टैक्स एक्ट और मार्केट से जुड़े कई बड़े फैसले। तो आज की चर्चा बजट 2026 में जानने की कोशिश करेंगे क्या बदला टैक्स पेयर्स के लिए। और इस अहम चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान भी जुड़े हैं। टैक्स लॉ और मार्केट के सबसे भरोसेमंद नाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर SC अग्रवाल जी, CMD हैं SMC कैपिटल लिमिटेड के। हमारे साथ मौजूद हैं संजय शरण जी, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड CGST। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं दो बहुत खास मेहमान, GS पन्नू जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट इनकम टैक्स एपिलेटेड ट्रिब्यूनल यानी ITAT के, और साथ ही मुकेश भूटानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर BMR लीगल से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और मेरे साथ है मेरे सहयोगी, और मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। और इस चर्चा को हम फिर एक बार आगे बढ़ाते हैं। बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री ने अपना 9वां बजट पेश किया और इस उपलब्धि के लिए भी पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। लेकिन बजट में क्या कुछ खास है? 48 लाख करोड़ रुपए का जो ये बजट है, और अगर इसमें हम इंफ्रा की बात करें तो पिछले साल 11.2 लाख करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा गया था, अलोकेट किया गया था। और इस बार जो एक तरह से जो विकास की जो रफ्तार है, जो गाड़ी है, उसे किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, तो 22 नए जलमार्ग विकसित करने का प्रावधान किया गया है और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर, 200 से ज़्यादा लीजेंडरी एक तरह से इकोनॉमिक वो भी उन्होंने तय किया है। तो अग्रवाल साहब हमारे बीच में हैं और इस सवाल को थोड़ा सा और आपके साथ साझा करते हुए हम आगे बढ़ें। सरकार ने खास तौर पर एक ध्यान दिया, उसने सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मेटल पर, और इसे लेकर के उसने बाकायदा भारत में एक कॉरिडोर भी जो है उसको आइडेंटिफाई किया, जिसमें उड़ीसा आ जाता है, आंध्र आ जाता है, केरल आ जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर विजन है, जिसके कनेक्शन कई बार चीन से जुड़ जाते हैं, जिसके कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गहरे जुड़े हैं, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, AI टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो चाइना है उनका बहुत लीड रोल है। बिल्कुल 90% मार्केट शेयर उनका है। और US, इंडिया, वो सबको एक तरीके से ब्लैकमेलिंग कह लीजिए या डिक्टेशन कह लीजिए, वो करता रहा है। तो इंडिया इसके लिए अभी जो 4 स्टेट जहां ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का माइंस हैं, उसको एक स्पेशल कॉरिडोर और स्पेशल फोकस करके उस पर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग और इंसेंटिव देना चाहता है, सो दैट हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर पिछड़े नहीं रहें और हम आगे बढ़ें। और यही कोशिश है, इसलिए इस बजट के अंदर प्रावधान हुआ है, इस पर स्पेशल फोकस दिया गया है। 4 स्टेट को आइडेंटिफाई किया है, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड 1 मोर स्टेट है। तो उसमें वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, और इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज ये AI मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए मिसाइल्स टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सब जगह रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होता है। और इसके बगैर आगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अपने मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स, सब जगह इनका यूज है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर फोकस दिया है। मतलब नई दुनिया में एंट्री लेने के लिए इस पर अपना दबदबा जरूरी है। बिल्कुल दबदबा जरूरी है। हम यदि इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट की तरफ से यदि हम इस पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमें अपने को इस चाइना या किसी और कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहें। जिसकी एक्सपर्टिज्म है उसको हम कोलाबोरेशन में एज ए पार्टनर ले लें प्रोडक्शन के अंदर, और वहाँ पर भी इंसेंटिव दिए गए हैं, जो हमारे साथ कोलैबोरेशन करेगा। बिल्कुल अग्रवाल जी, हमारे साथ GS पन्नू साहब जुड़े हैं वर्चुअल माध्यम से। पन्नू साहब, बजट 2026 में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब तो नहीं बदले हैं, लेकिन कंप्लायंस और प्रोसेस को आसान करने की बात की गई है। क्या समझें कि बजट दरों से ज्यादा टैक्स सिस्टम में सुधार पर फोकस दिखता है या फिर कुछ और है? और साथ ही ये जो एक्ट है, ये लिटिगेशन कम करेगा या फिर कानून की भाषा ही बदलेगी?
थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपसे शुरू में आई विल जस्ट मेक अ ओपनिंग रिमार्क बिफोर आई कम टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने दिए हैं। यू सी ओवरऑल बजट और जो बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड में बजट प्रेजेंट किया आज फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो वो बहुत ही क्रेडिटेबल है इन द सेंस कि दो चीजें बड़ी साफ नजर आई। एक तो कंसिडरिंग द बैकग्राउंड, इंटेंट क्या होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, वो क्लियर है। सेकेंडली जो डायरेक्शंस है वो क्लियर है। नाउ द थर्ड थिंग इज कि एक्चुअल स्ट्रेटजीज क्या अडॉप्ट की गई हैं, कैसे डिप्लॉय की गई हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को कहाँ फोकस किया गया है, वो एरियाज अगर आप देखें तो बहुत ही सुकून मिलता है इन द सेंस दैट इट शोज दैट वी हैव अ गवर्नमेंट व्हिच इज विजिलेंट एंड इज अवेयर ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड द वे फॉरवर्ड व्हिच इज टू बी कैरिड आउट। ऑफ कोर्स वी हैव द प्लान फॉर विकसित भारत तो 2047 तो उसके संदर्भ में दिया जा रहा है। But coming back to your specific question on direct taxes, yes, there is no change in the tax rates for the taxpayers, either individual or the corporates or the non-individuals, other categories also. Ji. Yes, the opportunity has been used to do some fine tuning and also clear out some procedures. I would not say that everything has been done and everything cannot be done in a single shot. So therefore it's a welcome measure जो भी किया है। TDS provisions को थोड़ा rationalize किया गया है। Then TCS also जहाँ थोड़ा sore points थे when TCS collection at the time of education payments of education under the liberalized foreign exchange remittance scheme में, overseas packages में, so those are things which is facilitating. Plus taxpayers where there could be a default on their part of and they're requiring to file revised returns, there has been a simplified version on that too. Updated returns agar kisi ko file karni hai to correct some mistakes, there also some liberalization has been shown. Of course there are some fine tune jo humne dekha hai, speech mein covered nahi tha FM के 2-4-5 ऐसी legal controversies चल रही थी टैक्स फील्ड में। जी जी। One relating to some tax limitation period limitations on making of assessments, उसको address किया गया है by way of making retrospective amendments. I will not go into the rights or wrongs of that amendment, but the fact is at least litigation की एक certainty की और एक उस तरफ बढ़ने की बात हो रही है। बिल्कुल पन्नू साहब, हम आपके तरफ फिर आएंगे एक बार, और हमारे साथ संजय शरण हैं, आप पूर्व GST कमिश्नर हैं। और इस सारी चर्चा को जो पन्नू साहब कहने की कोशिश कर रहे थे, इसको हम थोड़ा सा और अगर एलुब्रेट करने की कोशिश करें, टैक्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। आप GST कमिश्नर रहे हैं और आप ये भी देखते हैं कि उसमें कितने सारे अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई। जहां भी कहीं पर कोई कमी लगी वहीं पर रेगुलेशंस को चेंज करने की कोशिश हुई। और ये कहा जाता है कि जो आज इतिहास में जितने भी कानून आज तक बने हैं उनमें GST एक ऐसा कानून है जिसमें सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि GST में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म है। जब GST गवर्नमेंट ले आई तो गवर्नमेंट उसमें 33 और मेरे ख्याल से 7 या 17 40 है मेरे ख्याल से 40 टैक्सेज एंड सेसेज, इन सबों को 30 या 40 टैक्सेज या सेसेज को सब्स्यूम किया गया और GST को लाया गया। और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, जैसे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले नहीं मिलता था, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स था, इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर आपके जो ट्रक्स या लॉरीज जो गुड्स को कैरी करती क्रॉस करती थी वहाँ रुकती थी, बॉर्डर्स को एबॉलिश कर दिया गया। और वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट किया गया। एक ई-वे बिल पकड़िए और चले जाइए देश में। ई-वे बिल पकड़िए, ई-वे बिल लीजिए, जनरेट कीजिए और साथ में इनवॉइस जनरेट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ई-वे बिल अगर आप, जैसे आपने ई-वे बिल की बात की, तो अगर ई-वे बिल आप एक स्टेट में अगर एक बार उसको चेक कर फ्रेंड्स, फर्स्ट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर विल मेक